Good morning, students. How are you? I hope you all are happy and healthy. So, today I am Neha Singh, PRT Kendriya Vidyalaya Bheda. Today we will discuss Chapter 8 of Maths, Who is Heavier? This is a chapter of Class 3. So, let's start. A weightlifting competition is going on in Champapur. First, it is Bhola's turn. Bhola brought a sack filled with cotton. He lifted the sack very easily. Everyone clapped excitedly. Now, next is Bunny's turn. Bunny has brought 20 carrots from his house in a bag. Bunny definitely had some trouble lifting his bag. But in the end, he was finally able to lift the bag. Finally, it is Sher Khan's turn. Sher Khan has brought some bricks in a sack. He tried to lift it once, but was not successful. On trying again, Sher Khan was finally able to lift the sack full of bricks. The audience clapped more loudly. Now, the judge of the competition, Barbole uncle, is wondering who should be the winner after all. Children, can you tell which of the three carried the most weight? No problem. Let us see how Uncle is solving this puzzle. Uncle noticed that the three contestants brought different items in different bags and sacks. Therefore, we cannot compare their weight. So, what can we do now? Uncle brought a weighing scale. Children, do you know what a weighing scale is? A weighing scale is a device for measuring weight, and it is made of two plates. We have to put the two things whose weight we want to compare on these plates of the weighing scale. The weighing scale will tip towards the side of the plate which has more weight on it. Uncle first placed Bhola's sack on a plate of the scales and placed Bunny's bag of carrots on the second plate. Children, can you tell whose item is lighter and whose item is heavier? If you want, you can stop the video and find the answer. Well done, children. You have found the right answer. The weighing scale tipped towards Bunny's carrot bag. That is why Bunny's carrot bag is heavier than Bhola's bag full of cotton. Now, the competition will be between Sher Khan and Bunny. Uncle now replaced Bhola's sack with the sack filled with Sher Khan's bricks. Children, can you tell which of these items is heavier? Your answer is absolutely correct. This time, the scale tips towards the sack filled with Sher Khan's bricks. So,
The sack with Sher Khan's bricks is a lot heavier than Bunny's bag filled with carrots. Children, can you tell who will be the winner? Because the sack filled with Sher Khan's bricks is heavier than Bunny's bag filled with carrots, and Bunny's bag of carrots is heavier than Bhola's sack of cotton. Therefore, Sher Khan's sack filled with bricks is also heavier than Bhola's cotton sack. In this way, Sher Khan is the winner of this competition. Finally, Uncle also found the winner of the competition in this way. Because Sher Khan's sack with bricks is the heaviest in weight, Sher Khan is the winner of this competition. See, the audience is continuously clapping without stopping, and Sher Khan is dancing happily. Children, in this video, we learn to compare the weights of objects. In the next video, we will learn more about it by some interesting. चिल्ड्रन, आपने अभी जो स्टोरी देखी उसमें शेर खान विनर होता है। वो क्यों? क्योंकि जो उसका ब्रिक्स से भरा हुआ सैक होता है वो मोस्ट हैवीएस्ट होता है देन बनीज एंड बबलू। सो लेट्स we understand this by this topic. जब हम किसी भी चीज़ का मेज़रमेंट अपने हाथों से या फिर किसी वस्तु की तुलना करके करते हैं, किसी वस्तु की तुलना से हम करते हैं तो फिर उसे हम नॉन स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ वेट मेज़रमेंट कहते हैं। सो यहाँ पर हम एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। ये एक बच्ची है जिसने 2 थैले लिए हैं। एक थैला ग्राउंड नट से भरा हुआ है और एक थैला गुड़ से भरा हुआ है। देखने में तो ग्राउंड नट का थैला बच्ची को बहुत बड़ा लगता है और गुड़ का थैला छोटा लगता है। इसलिए इस बच्ची को लगता है कि जो ग्राउंड नट का थैला है वो मोस्ट हैवीएस्ट है एंड द गुड़ का थैला जो है वो लाइटर वेट का है। बट यहाँ पर हम जब ये बच्ची अपने माता पिता के पास जाती है और उनसे पूछती है कि इनमें से किसका थैला भारी है, क्योंकि उसे बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न रहती है। इसके पिता वेइंग बैलेंस स्केल यूज़ करते हैं और वहाँ पर बताते हैं बेटा ग्राउंड नट हल्का होता है गुड़ की तुलना में, इसलिए गुड़ ग्राउंड नट से ज़्यादा भारी है और ग्राउंड नट जो है वो हल्का है गुड़ की अपेक्षा। बच्चों, अब हम समझते हैं कि स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ वेट मेज़रमेंट का यूज़ करके हम कैसे किसी भी चीज़ का सटीक वेट पता कर सकते हैं, क्योंकि नॉन स्टैंडर्ड यूनिट से हम किसी भी चीज़ का सटीक वेट नहीं पता कर सकते हैं। इसलिए हम आज सीखेंगे कि कैसे हम स्टैंडर्ड यूनिट का यूज़ करके मेज़रमेंट करते हैं। किलोग्राम वेट मेज़रमेंट की एक यूनिट होती है जिसमें 1000 ग्राम होते हैं और 1 ग्राम इक्वल टू 1000 मिलीग्राम होते हैं। किलोग्राम ग्राम से बड़ी मेज़रमेंट यूनिट होती है और मिलीग्राम सबसे छोटी यूनिट होती है। जब हम मार्केट में सामान खरीदने जाते हैं, जब हम सब्जी और फल और घर के कुछ बाकी सारी चीज़ें भी लेने जाते हैं, तो बाज़ार में जब हम
सामान लेते हैं तो वहाँ पर इनका मेज़रमेंट किलोग्राम, ग्राम और मिलीग्राम में होता है। ये सारी चीज़ें आप अपने घर में सीख चुके हैं। इस प्रकार हम यहाँ पर कह सकते हैं कि किलोग्राम वेट मेज़रमेंट की सबसे बड़ी यूनिट, उससे छोटी यूनिट ग्राम और फिर सबसे छोटी यूनिट मिलीग्राम होती है। यहाँ पर कुछ पिक्चर्स शो हो रहे हैं आपके स्क्रीन पर। इनको हमें देखना है और पता करना है कि इनमें से कौन सी वस्तु किलोग्राम में माप सकते हैं और कौन सी वस्तु ग्राम में माप सकते हैं। So guess? Yes, we got the right answer. We will measure rose and pumpkin in rose and newspaper in gram, while we will measure pumpkin and dog in kilogram. Well done, students. So now look at the picture. यहाँ पर इनमें दिए गए जानवरों और वस्तुओं, पिक्चर्स में दिए गए सभी के हम अप्रॉक्सीमेट वेट पता करेंगे। जैसे यहाँ पर एलिफेंट का वेट दिया है 1000 किलोग्राम, काऊ का है 400 किलोग्राम, बैग का है 10 किलोग्राम, सैक का है 80 किलोग्राम, डॉग का है 2 किलोग्राम and the mango which is less than 1 kilogram. So here we find when there is a measurement less than 1 kilogram we will measure in gram. So हमने यहाँ पर सीखा था 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होता है और 1000 ग्राम में 1000 मिलीग्राम होता है। अब हम सीखेंगे कि कैसे हम किलोग्राम को ग्राम में कन्वर्ट करते हैं और ग्राम को मिलीग्राम में कन्वर्ट करते हैं। सो आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज कन्वर्ट 3 kilograms into grams. फर्स्टली वी नो दैट 1 किलोग्राम में होता है 1000 ग्राम, तो हम यहाँ पर 3 किलोग्राम बराबर 1000 ग्राम गुणे 3 ग्राम्स। अब जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 3000 ग्राम्स। ओके, अंडरस्टूड? सो नेक्स्ट इज कन्वर्ट 4 ग्राम्स इनटू मिलीग्राम्स। हम ग्राम को मिलीग्राम में चेंज करने के लिए क्या करते थे बच्चों? हम ने सीखा है 1 ग्राम में 1000 मिलीग्राम होता है, तो हमारा 4 ग्राम में कितना हो जाएगा? हम 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 1000 मिलीग्राम से, तो यहाँ पर हमें मिल जाएगा 4000 मिलीग्राम। समझ में आया आपको? बच्चों, आप जब बाज़ार जाते होगे तो आपने देखा होगा कि हम डिफरेंट टाइप्स के वेइंग स्केल्स देखते हैं वहाँ पर, जिससे हम सब्जियाँ, फल, अनाज वेट करके हमें मिलता है। तो हम यहाँ सीखेंगे कि ये डिफरेंट टाइप के वेइंग स्केल कौन कौन से होते हैं। यहाँ पर आपके डिफरेंट टाइप्स के वेइंग स्केल्स दिए गए हैं। तो पहला हमारा है बीम स्केल, जो कॉमनली आपने देखा होगा बहुत सारी दुकानों पर। दूसरा हमारा है बेंच स्केल, जो आजकल इलेक्ट्रॉनिक स्केल यूज़ होता है वेट मेज़रमेंट के लिए। ये हमारा बेंच स्केल है, इस पर लगभग 40 किलोग्राम का वेट आप तौल सकते हैं। तीसरा हमारा है प्लेटफॉर्म स्केल। प्लेटफॉर्म स्केल, इसमें 40 ग्राम से ऊपर के वेट को मापा जाता है। तो बच्चों, आपने बहुत अच्छे से समझा, इसलिए मैंने आज जो सिखाया है उसको आप रिवाइज करते रहिएगा। ओके, टिल देन
Bye bye. Take care.